Dear student, we are going to study a beautiful poem of 10th class English, page number 102. 102. The poem Stopping by Woods on a Snowy Evening. It was written by American poet Robert Frost. Robert Frost was born 1874. He died 1963. He is highly regarded for his realistic depiction of rural life and his command of American colloquial speech. His poetry, his writing depicted on rural life, and his language is colloquial, mean day to day. The language is speak in day to day life. He is one of the most popular and critically respected American poets of 20th century. Robert Frost was a respected poet. He received 4 Pulitzer Prizes for poetry. He was awarded 4 prizes poetry. In this poem, the poet described a little incident happening in a snowy evening. As a traveler, the poet, fascinated by the beautiful scene in the woods, he stopped to enjoy, but his mind urged him to go on. ये नज़म का जो टाइटल है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग. स्टॉपिंग में रुक जाना, ठहर जाना. कहाँ ठहरना? वुड्स. वुड्स मीन्स हियर स्मॉल फॉरेस्ट, एक जंगल का टुकड़ा. और जो समय जो था, टाइम जो था, स्नोई इवनिंग, शाम, बर्फीली शाम. अमेरिका का सीन है, बर्फ़ है, विंटर का मंथ है, बर्फ़ गिर रही है, शाम है, और शायर और ट्रैवलर, ये मुसाफिर, उस छोटे से फॉरेस्ट पे रुक जाता है, ठहर जाता है. द थीम ऑफ द पोएम रॉबर्ट फ्रोस्ट डिस्क्राइब, इस नज़म का जो थीम है, शायर ने एक इंसिडेंट के बारे में बताया, एक हादसे के बारे में बताया. और कब हुआ हादसा? ये स्नोई इवनिंग, एक शाम में हुआ. एक वाक़या सुना रहा है, शाम में हुआ, और शाम थी स्नोई, बर्फीली, बर्फ़ गिर रही है. एज ए ट्रैवलर, द पोएट इज ए ट्रैवलर. शायर यहाँ एक ट्रैवलर है, मुसाफिर, सफ़र कर रहा है अपने घोड़े पर. एंड ही वॉज फैसिनेटेड, अट्रैक्टेड, और वो खूबसूरत सीन, ब्यूटीफुल सीन, उस जंगल का, वुड्स का, उस खूबसूरत सीन से वह अट्रैक्ट हो जाता है, महू हो जाता है, फैसिनेटेड हो जाता है, और रुक जाता है. He stopped to enjoy. क्यों रुकता है? He wanted to enjoy the beauty of the forest, but his mind urged him to go on. लेकिन उसका दिमाग कहता है, तेरी मंजिल नहीं है ये फॉरेस्ट, ये खूबसूरत चीज़ जो तू अट्रैक्ट हो गया है, ये तेरी मंजिल नहीं है. दिस इज़ नॉट योर गोल, दिस इज़ नॉट योर डेस्टिनेशन. ये मंजिल नहीं है, तुझे आगे जाना है. सो दिस इज़ द थीम ऑफ द पोएम, एंड दिस इज पोएम इज ए मेटाफॉर यूज. यहाँ मेटाफॉर, पूरी नज़म में मेटाफॉर का इस्तेमाल किया गया है, कंपेयर किया गया.
simile or metaphor. Simile means indirect तशबीह देना और metaphor direct तशबीह देना. The whole poem is a metaphor. There are 4 stanzas in this poem. I am going to read. Please listen. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill with snow. My little house must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkness evening of the year. He gives his harness bell a shake to ask if there is some mistakes. The only other sounds of sweep of easy wind and dawny flack. The woods are lowly, dark and deep, but I have promised to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Very simple poem, short poem, but it has deep meaning. मुख्तसर नज़म, लेकिन एक ज़िंदगी का फ़लसफ़ा, ज़िंदगी का मकसद यहाँ हमें बताया गया है. In the first stanza, the poet says, whose woods these are, I think. शायर, ट्रैवलर अपने घोड़े पर सफ़र कर रहा है और एक जंगल पे रुक जाता है. He stopped by forest, woods, and the poet and traveler know whose forest is. शायर और मुसाफिर जानता है ये जंगल, ये फॉरेस्ट किसका है. He knows the owner of the forest. I think I know his house in the village though. जिस मालिक का ये फॉरेस्ट है, जंगल है, वो गांव में रहता है. He lives in the village. He will not see me stopping here. अगर मैं यहाँ रुक जाता हूँ, वो मुझे देखेगा नहीं. Because the owner of the forest lives in the village. To watch his woods fill with snow. और उसका उस जंगल और खूबसूरत फॉरेस्ट कैसे भरा हुआ है? स्नो, बर्फीला. So in the first stanza, the poet says, the poet stopped at the forest. He is fascinated by woods, captivated by woods. वो जंगल से महू हो जाता है, रुक जाता है. उसका घोड़े को आगाह करता है, रुक जा, और चाहता है कि इस खूबसूरत मंजर को थोड़ा एंजॉय कर लूँ, क्योंकि उसका मालिक वहाँ नहीं है, मालिक तो गांव में है. And the poet knows the owner of the forest. To watch his woods fill with snow. तो देखता है कि पूरा फॉरेस्ट स्नो से है. My little house must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkness evening of the year. लेकिन घोड़े को बड़ा अजीब लगता है. My little horse means poet little horse, traveler's little horse. वो मुसाफिर शायर का घोड़ा को हैरत होती है, queer, strange, कि उसका मालिक क्यों रुक गया यहाँ. ये तो मंजिल नहीं है, ये जंगल उसकी मंजिल नहीं है, उसको तो जाना है. So queer to stop without a farmhouse near. और इस जंगल में कुछ घर भी नहीं है ताकि रुकने के लिए. फार्म हाउस नहीं है, जो जंगल में छोटा सा घर रहता है रुकने के लिए, यहाँ तो नहीं है. Why the traveler, a poet, stop here? There's a little house queer. उसको अजीब महसूस हुआ. Between the woods and frozen lake. कैसा था? Woods, frozen lake, बर्फीली जमी हुई लेक, झील,
झील में पानी है लेकिन झील जम गई है बर्फ़ से। खूबसूरत झील, खूबसूरत जंगल। शाह रुक गया। घोड़े को हैरत हो रही कि उसका मालिक क्यों रुका यहाँ। और कैसी शाम थी, डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। डार्केस्ट इस साल की अंधेरी रात, अंधेरी शाम, इवनिंग। ज़ाहिर है कि ये मौसम कौन सा है, विंटर का। शायद जो रुकता है मौसम विंटर का, मौसम सरमा का। बर्फ़ गिर रही है, सब तरफ बर्फ़ है, खूबसूरत मंजर है। शायर रुक गया। बट द हॉर्स फील स्ट्रेंज, उसको अजीब लगा। He gives his harness bell to shake. तो घोड़े ने हार्नेस बेल, जो उसकी बेल थी, घुंघरू छोटी छोटी जो घोड़े ने पहन रखा था, उसने हलाया। शेक, हलाना। Who shake? A little horse. वो घोड़ा, he means घोड़ा वहाँ। He gives his harness bell a shake. और क्यों हलाया? To ask if there is some mistakes. वो मालिक से पूछना चाह रहा है, मालिक क्या गलती हो गई है क्या रुकने की यहाँ? आप क्यों रुके यहाँ? He harnessed the bell. घोड़ा याद दिला रहा उसे कि आप क्यों रुक गए यहाँ? Ask if there are some mistakes. The only other sound the sweep. और क्या था, सिर्फ वहाँ आवाज़ें आ रही थी बस। हवा की आवाज़, ठंडी, बर्फ़ गिर रही है। डॉनी फ्लैग मीन्स बर्फ़ का गिरना। ईजी विंड, हवा की आवाज़। क्या दिख रही है? द साउंड। इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच। जब साउंड का जिक्र हो तो उसको ओनोमोटोपोई कहते हैं। साउंड, जो साउंड को डिस्क्राइब करता, तो यहाँ साउंड है, देखिए। द ओनली साउंड द स्वीप, इजी विंड एंड डॉनी फ्लैग। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। जंगल बहुत ही खूबसूरत है, गहरा है, शाम अंधेरी है। बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप। लेकिन मेरा कमिटमेंट है, मेरा वादा है, मेरा मकसद है कि यहाँ रुकना नहीं है जंगल में। मेरा मकसद आगे जाना है। तो शायर सोचता है, अरे मैं तो यहाँ रुक गया, बट दिस इज़ नॉट माई डेस्टिनेशन, दिस इज़ नॉट माई एम एंड गोल। मैं ये जो खूबसूरत चीज़ों से मैं महू हो गया हूँ, ये तो चीज़ें मेरी नहीं है, इट इज़ टेम्पररी। मेरा मंजिल और है। तो घोड़े ने भी याद दिलाया, शायर को भी याद आ गई और कहा, जंगल तो लवली डार्क एंड डीप है, बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप। लेकिन मुझे जाना है, मेरा मकसद दूसरा है। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। कई मीलों जाना है मुझे अभी, माइल्स। आई स्लीप, सोने से पहले, आराम से पहले मुझे काम करना है। आराम से पहले मुझे और जाना है, मेरे मंजिल को पूरा करना है। ये मेरी मंजिल नहीं है। आई माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। शायर कह रहा है, मुझे कई मीलों जाना है, कई मीलों जाना है सोने से पहले। यहाँ सोने से मेरा है डेथ, मौत। यानी मौत से पहले आप अपना मकसद को पूरा करना है। ये दुनिया की खूबसूरती, ये आर्जी ज़िंदगी, ये तो टेम्पररी है। यहाँ रुकना नहीं है। यू हैव टू कंप्लीट जर्नी, गोल, डेस्टिनेशन। आपको जिस मकसद से यहाँ आए हैं, उस मकसद को पहले पूरा करना है। इस खूबसूरत चीज़ों में आप महू नहीं हो जाना है। दिस इज़ द थीम ऑफ द पोएम। तो यहाँ शायर जो कह रहा है, वी हैव फुलफिल ऑफ द लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमको अपनी जिम्मेदारी अदा करना है। बिफोर वी डाई, कब करना है? मौत से पहले। यहाँ आखिरत
दुनिया और आखिरत का बताया गया कि दुनिया एक टेम्परेरी चीज़ है, आखिरत आपकी मंजिल है, वही है। और इनर कॉन्शियस कीप अस रिमाइंडिंग अस, शायर को कॉन्शियस ज़मीर कह रहा है टू गो अवे फ्रॉम द टेम्पटेशन, इस ख्वाहिशात टेम्पटेशन से आगे बढ़, तेरी मंजिल ख्वाहिशात नहीं है, ये दुनियाई ख्वाहिशात नहीं है, तो आगे बढ़ और अपनी जिम्मेदारी को कंप्लीट कर। फुलफिल अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रॉमिस, तूने जो वादा किया है, प्रॉमिस किया है, वो वादा कर। सो होल पोएम इज अ मेटाफोर। यहाँ पूरी जो नज़म है एक बिलरास्त तशबीह दी गई है। तो देर आर 4 स्टांजा इन दिस पोएम, 4 स्टांजा है इसमें। पहले स्टांजा में मैंने बताया कि शायर रुक जाता है क्योंकि खूबसूरत मंज़र है, खूबसूरत चीज़ है, शायर को पता है इसका मालिक कौन है, और उसको मालिक उसको देखेगा नहीं अगर रुक जाता है, एंजॉय करता है तो। लेकिन घोड़े को बड़ा अजीब लगता है, वो अपनी बेल जो उसके गले में जो पट्टा है वो बजाता है, हलाता है और कहता है मालिक तुमसे गलती हो गई है, आप क्यों रुक गए यहाँ। फिर शायर को याद आता है नहीं ये तो मंजिल नहीं है, आई टू गो माइल्स, मुझे और जाना है, मुझे और जाना है। सो दिस इज़ ए ब्यूटीफुल पोएम। यहाँ हम क्वेश्चंस पहले देख लेंगे। पेज नंबर 102 पहला क्वेश्चन है, वेयर हैज द पोएट स्टॉप, शायर कहाँ रुक गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, कहाँ रुक गया ये पता है। व्हाट सीजन ऑफ द ईयर डिस्क्राइब हियर, कौन से सीजन का यानी कौन से मौसम का जिक्र गया। जाहिर है कि विंटर है, विंटर में ही बर्फ़ गिरती है, मौसम सरमा का है। एंड व्हाट टाइम द डे डिस्क्राइब, कौन सा टाइम था, दिन था, दोपहर थी, शाम थी, ये बताइए। डेफिनेटली इट्स इवनिंग। और एक क्वेश्चन, लीस्ट ऑफ साउंड मेंशन इन द पोएम, यहाँ साउंड का जिक्र गया, कौन से साउंड है वो आप इसमें ढूंढिए। है इसमें साउंड, हवा, डाउनी फ्लैग, विंड, डाउनी फ्लैग, बर्फ का गिरना, देयर आर सम साउंड। व्हाई डज ट्रैवलर हैव टू लीव द लवली वुड्स, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। व्हाई डज अ ट्रैवलर हैव टू लीव द लवली वुड्स, लीव यानी रुखसत, चले जाना। ट्रैवलर क्यों उस जंगल को छोड़ के जाता है, इस खूबसूरत जंगल को छोड़ के जाता है। बिकॉज ही हैज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही हैज़ टू प्रॉमिस टू कीप, ये मंजिल नहीं थी उसकी, उसकी जिम्मेदारी और थी। उसका जो नज़म का पूरा खुलासा शायर के तारुफ में आखिरी जो 4 लाइनों में बता दिया गया है कि द पोएट ट्रैवलर fascinated by beautiful scene in the woods, he stopped enjoy but his mind urged him to go। शायर वहाँ रुक जाता है लेकिन उसका दिमाग कहता है बाबा तेरी मंजिल नहीं है, तुझे और जाना है। पेज नंबर 103 103 पर क्वेश्चंस है, ट्रू एंड फॉल्स। द स्पीकर स्टॉप टू वॉच रेन फॉलिंग अमंग द ट्रीज, आपको बताना है कि सही है गलत है। शायर जो है दरख्तों के दरमियान रुक जाता है, बारिश का मौसम था, तो सही है गलत बताना है। द ओनर ऑफ द वुड्स इज नोन द स्पीकर, और जंगल के मालिक, स्पीकर यानी शायर जंगल के मालिक को जानता है, ये सही है कि गलत बताना है। द हॉर्स इज वरीड अबाउट द कोल्ड एंड वांट टू कीप गोइंग, घोड़ा सर्दी से परेशान है और घोड़ा चाहता है। हॉर्स इज वरीड अबाउट द कोल्ड एंड वांट्स टू कीप गोइंग, घोड़ा सर्दी से परेशान हो गया है और चाहता है आगे जा, जबकि वैसे नहीं। द हाउस फील स्ट्रेंज, उसको अजीब लगता है, क्यों उसका मालिक रुका है। बिकॉज दिस इज नॉट द डेस्टिनेशन, दिस इज नॉट ए जर्नी, उसका ये सफ़र फाइनल सफ़र नहीं था। आपको बताना है सही गलत है क्या। द स्पीकर डजंट एम्फेसिस अपॉन द ब्यूटी ऑफ द वुड्स इन पासिंग थ्रू,
शायर यहाँ खूबसूरती को एम्फेसिस नहीं करता है, ज़ोर नहीं देता है। यहाँ तो खूबसूरती को ज़ोर देता है, आपको बताना है सही है गलत। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द लाइन फ्रॉम द पोएम प्रूफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन। आपको पूरी लाइन बताना है उसके, जैसे हम मायने अल्फाज रहते हैं उसे हम लाइन भी है। जैसे देयर इज़ नो वन टू कैच द स्पीकर ट्रेस पासिंग, यहाँ कोई नहीं था कि स्पीकर ट्रेस पासिंग यानी किसी जगह पर ज़बरदस्ती आके घुस जाना। और ज़ाहिर है कि जंगल एक मालिक का था, तो शायर वहाँ के रुक गया। तो यहाँ वो लाइन बताइए कि देयर इज़ नो वन टू कैच, वहाँ कोई देखने वाला नहीं था, शायर क्यों रुका करके। तो कौन सी लाइन है बताइए। जैसे यहाँ एक बताए, ही विल, लाइन नंबर 3 और 4, ही विल नॉट सी मे स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स इट इज नो, वो मुझे देखेगा नहीं। तो ये पूरी लाइन आपको इसमें लिखना है। बी क्वेश्चन, द लिटिल हॉर्स ड्रॉ द मास्टर अटेंशन, एक लाइन वो ढूंढना है कि घोड़ा जो है अपना मास्टर, अपने मालिक की तवज्जो दिलाता है। कैसी तवज्जो दिलाता है उसको यहाँ एक लाइन लिखिए। हिज हॉर्स सीम एंशियस टू कीप गोइंग, उसका घोड़ा चाहता है कि चलते रहे, रुकना नहीं। तो ये बताइए कौन वो लिखना है लाइन। द स्पीकर प्रीफर स्टे बट फोर्स टू मूव टूवर्ड्स, स्पीकर चाहता है रुकना लेकिन उसको आगे भी जाना था। तो बताइए। द पोएम इज सेट बाइगन एरा, बाइगन एरा ना ख़दीम ज़माने की, ये नज़म जो है अभी की, ऐसा लगता है कि आज नहीं हुई बल्कि क़दीम ज़माने के। घोड़ा है, घोड़े पे सफ़र कर रहा है, और पहले लोग जब घोड़े पे सफ़र करते थे तो कौन सी वो जो लाइन है अब बताइए। तो कोशिश कीजिए आप, यू शुड ट्राई। क्वेश्चन नंबर 3, द पोएम बिलीव टू रेफरेंस द पोएट लाइफ, व्हाट वुड बी फॉलोइंग सिग्निफाइंग। देखिए टोटल मेटाफोर पोएम मैंने कहा ABCD दी गई हैं, उसमें से चुन के लिखना ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्राइज जिम्मेदारी और फ्राइज, ओल्ड एज बुढ़ापा, लाइफ जिंदगी, डेथ मौत, और एवर लास्टिंग पीस सुकून शांति। तो ये ABCD देगी, उसमें सही लिखना द स्पीकर जर्नी, स्पीकर का जो सफ़र है, इस सफ़र को किससे कंपेयर किया गया, डायरेक्ट कंपेयर किया गया। यहाँ बताया गया लाइफ से, ज़िंदगी, इस हमारा जो सफ़र है, हमारी ज़िंदगी एक सफ़र है। ये स्नो इवनिंग से मुराद यहाँ बताया जो बर्फ़ है, शाम है, बर्फ़ गिर रही है। तो यहाँ ओल्ड एज से मुराद, ओल्ड एज में बुढ़ापा। लवली डीप एंड डार्क, और जो खूबसूरत चीज़, अंधेरा गहरा जंगल। तो ये पीस बताया, शांति, एवर लास्टिंग पीस। प्रॉमिस वादे से मुराद जिम्मेदारियाँ, फ्राइज ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और स्लीप से मुराद यहाँ डेथ मौत, इन्हें सोने से पहले उसे जिम्मेदारी करना है, इन्हें मौत से पहले उसकी जिम्मेदारी देना है। तो ये चुन के आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, राइमिंग्स टेल वेदर द राइम्स स्कीम द फॉलोइंग स्टैंजा राइट और रॉन्ग। आपको बताना है कि ये सही है गलत। कि पहला स्टैंजा देखिए, पहले स्टैंजा की राइमिंग स्कीम है A जैसे नो दो A है ये, और हियर B को दिए, और स्नो भी A है, तो इस तरह से ये A है ये। और दूसरी तीसरी चौथी लाइन ये रॉन्ग है ये, और उसकी करेक्ट राइमिंग स्कीम है दूसरी स्टैंजा की A और तीसरे स्टैंजा की भी A, लेकिन चौथा जो स्टैंजा है उसकी राइमिंग स्कीम है A, 4 मरतबा A। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपको राइमिंग्स वर्ड ऐसे बनाना है, बहुत इजी है, ट्राई कोशिश कीजिए। पेज नंबर 104, 104 मैच करना है आपको फिगर ऑफ स्पीच। जो हुज वुड्स दिस आर आई थिंक आई नो, तो आपको बताना है ये अलिट्रेशन है, पर्सनिफिकेशन है, इन्वर्शन है, रिपीटेशन है। हुज वुड्स दिस आर आई थिंक आई नो, तो ये जो है इन्वर्शन है। इन्वर्शन से मुराद के बेतरतीब सेंटेंस, जो तरतीब वाला सेंटेंस है उसको बेतरतीब सेंटेंस, जैसे पहले सब्जेक्ट आता, वर्ब आता, ऑब्जेक्ट आता है।
सब्जेक्ट आता या हेल्पिंग वर्ब आता, वर्ब आता, ऑब्जेक्ट आता। तो इस तरफ का जो सेंटेंस है उसको करेक्ट सेंटेंस कहते हैं। अगर थोड़ा मिक्स इधर उधर आ गया तो हम इन्वर्शन कहते हैं, बेतरतीब। तो पूरा बेतरतीब सेंटेंस है, देखिए ये हुज वुड्स दिस आर आई थिंक आई नो, जबकि आई थिंक पहले आना चाहिए था, तो ये इन्वर्शन है ये। क्वेश्चन नंबर 2, द वुड्स आर लवली डीप एंड डार्क, ये है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन से मुराद जो वर्ड अल्फ़ाबेट बार बार रिपीट होता है, यहाँ अल्फ़ाबेट बार बार रिपीट हुआ, डीप, डार्क एंड डीप, डी रिसिप्टेड, दैट्स अलिट्रेशन। थर्ड, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, रिपीटेशन है ये। रिपीटेशन है वर्ड रिपीट होना, अलिट्रेशन है अल्फ़ाबेट रिपीट होना। तो वर्ड रिपीट हुआ, देखिए माइल्स, माइल्स, बिफोर, बिफोर, स्लीप, स्लीप, तो ये रिपीटेशन है ये। और क्वेश्चन नंबर 4, माई लिट हाउस मस्ट थिंक स्क्वीर, ये है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन यानी इट शोज ह्यूमन क्वालिटी। जानवरों में या बेजान चीज़ में अगर इंसानी खसूसियत बताई जाती है, दैट्स कॉल्ड पर्सनिफिकेशन। तो घोड़ा अजीब सोच रहा है, अजीब लग रहा है उसे, तो माई लिट हाउस मस्ट थिंक क्वीर, तो क्वीर ये पर्सनिफिकेशन है, क्योंकि इंसानी अजीब सोचते हैं, तो ये घोड़ा सोच रहा है, तो पर्सनिफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी जोड़े लगाइए। जब मिस्टेक यानी गलती, डाउनी फ्लैग बर्फ़ का गिरना, उड्स जंगल, क्वीर अजीब, तो इसके जोड़ियाँ आप करेक्ट करके लगाइए। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग वेब डायग्राम एडिंग सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बताना है। जैसे विंड, हवा, हवा को जो से रिलेटेड जो वर्ड है डिस्क्राइब करने वाले बताना है। इवनिंग से रिलेटेड जो लफ्ज़ है उसको बताना है, तो इसको आप भरिए। जैसे स्कूल से रिलेटेड वर्ड टीचर, बेंच, बोर्ड, स्टूडेंट, प्लेग्राउंड, ये स्कूल से रिलेटेड वर्ड है। तो इस तरह से विंड से रिलेटेड जो वर्ड है बताइए, इवनिंग से रिलेटेड वर्ड बताइए, एंड राइट ऑल द क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक एंड डू द वर्कबुक। थैंक यू।